Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 5. Chapter number 5 and the chapter name is Class Playing with Numbers. Class Playing with Numbers जैसे आपको चैप्टर से के साथ नाम से ही पता चल रहा होगा. Today we will deal with the numbers or play with the numbers. Okay class, now let's start the chapter. Puzzles involving 2 or 3 digit numbers. Class हम puzzles के बारे में पढ़ेंगे. In this section, we shall learn how to solve some mathematical puzzles involving 2 or 3 digits numbers through illustrative examples before doing. So let us first have a brief look on some fundamental rules regarding the placing of digit in 2 or 3 digit numbers. The digits are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9. A 2-digit number should have 2 digits. Plus 2-digit number would have class उसके पास कितने digit होते हैं? 2 digits. First at 1 place and another at 10 place. Digit 0 cannot be placed at 10 place in a 2-digit number. तो क्लास अब यहाँ पर ये क्या हो गया? 1s और ये 10s हो गया. जब क्लास 0 को हम 10th place पर नहीं रख सकते इन 2-digit number. In general, a 2-digit number form 10a plus b where a is not equal to 0 and b is a whole number. So 37 3 into 10 plus 7 10 multiply 10 digit plus 1 digit. Similarly हमने इसी में भी यही किया है. Now a 3-digit number would have 3 digits, first at 1 place, second at 10th place and third at 100th place. Digit 0 cannot be placed at 100th place in a 3-digit number. In general, 3-digit number form plus 100 plus a plus 10 plus b, 100a plus 10b plus c where a, b, c and c are whole numbers and a is not equal to 0 again. Similarly class हमने इसको भी solve out किया है. Now class come on solved example. Example number 1, sum of digits of a 2-digit number is 11. If digits are reversed, the new number so form decreased by 9. The original number is class. Let the 2-digit number 10y plus x, where x and y be in the ones place and tens place respectively. On reversing the digits of the original number, the new number is 10x plus y. So by the given condition we have new number is equal to original number minus 9. उन्होंने क्या बोला था? Sum of the digits of a 2-digit number. 2-digit number. तो क्या होगा क्लास? अब हमने उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किया, देन सोल्व आउट किया. तो x की वैल्यू 5 and y की वैल्यू 6. So the option B is correct. Answer is 65. Now example number 2, circle the 3 numbers which are added to make the number in the given blue. Class solution. यहाँ पर है 10, 30, 50 क्योंकि हमें 90 को फॉर्म करना था क्लास. तो 90. तो क्लास अब यहाँ पर 210 को फॉर्म करना है. सो क्लास दैट इज 30, 70 और 110. Now example number 3, use any 5 out of given numbers cards to fill the boxes. तो क्लास यहाँ पर 3 लाना है हमें, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9. तो solution at once we can have following pairs 9 8 8 5 8 3 5 3. We would choose 8 5 8 plus 3 13 and would 1 carry once again. अब class C. तो 13 plus 1 14 plus 1 9. तो यहाँ पर क्लास अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ही सोल्व आउट किया. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 943. एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द मिसिंग डिजिट. अब क्लास 162. अब यहाँ पर हमने A माना, यहाँ B माना और यहाँ C माना, लाइक दिस. स्टेप 1, you have to at the ones place we can. So class we can have 3 4s are 12, 7 6 are 42, 8 9 are 72. क्लास यही टर्म्स हो सकती हैं. सो लेट अस कंसीडर 3 4s are 12. तो अब क्लास यहाँ पर C3, B4 and C4 और B3. So as 3 multiplied by 4, 12. Carry over would be 1. Now A into C should be 15. So 5 3s are 15. Step 4. From step 2 and 3 we have 3. C3 हो गया और B4 हो गया. A क्या हो गई? 5 हो गई. Now students are advised to consider 7 into 6, 8 into 9 and get a different answer if possible. Class, if possible. Example number 5. Think of a number and add 6 and then multiply by 5. The answer is 120. What is the number? तो क्लास हमने नंबर माना x, उसको करना है 5 से मल्टीप्लाई. ओके, by adding 6 we get x plus 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से.
तो हमारे पास क्लास ये टर्म आ गए, हमने सोल्व आउट किया, x की वैल्यू क्या आ गई 18. Example number 6, what are the number in the circle if numbers written in square are the product of connecting circles? Thus let us start from a, since a is the common divisor of 40. So 30, a could be 2, 5 and 10. क्लास हमने क्या किया, इमेजिन किया है. क्लास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 हो सकता है. तो 20, अब क्लास यहाँ पर 20, यहाँ पर 15. So now b into c, that is 300 is not equal to 48. So option hence a is equal to 2 is rejected. Now case second में देखते हैं हम. a is equal to 5, तो क्लास 8. अब यहाँ पर 6, तो b multiply by 6 48, so which is correct. Now example number 7, consider the sum, difference and product of two numbers. What are the numbers class? Sum, difference, product. ये तो क्लास सम है, ये डिफरेंस और ये टू प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 24. नाउ यूजिंग फैक्टर्स वी हैव द फॉलोइंग क्लास. 24, 12, 8 3s are 6 4s are. Now 12, 24, 12, 8 16, 8 6 1 2 3 4. So class 25, 14, 11, 10. So clearly the numbers having product as 24, the sum as 6, sum as 10 are 6 and 4. So p is equal to 6 and q is equal to 4. So also the difference c is equal to 6 minus 4 is equal to 2. Example number 8, consider the sum, difference and product, write the numbers on the walls. क्लास यहाँ पर हमें डिफरेंस है, सम है, प्रोडक्ट है, नंबर्स है. अब यहाँ पर हम स्टेप 1 को देखते हैं. a की हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो 1 दैट इज d, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 5. डिफरेंस क्लास क्या होगा, f है, सम है, प्रोडक्ट है, नंबर्स है. तो क्लियरली 5 प्लस 1 6, दैट इज क्लास क्या होगा e. नाउ अब ये क्लास यहाँ पर सम दिया हुआ है, तो 35 प्लस 5 35. अब क्लास यहाँ पर 3 प्लस 5 दैट इज 35. 35, अब क्लास c क्या होगा 30. नाउ अब यहाँ पर 30 आ गया. अब क्लास यहाँ पर ये नंबर्स है, तो 35 माइनस 6 क्या हो जाएगा क्लास, f हो जाएगा, दैट इज 29. तो a मल्टीप्लाई बाय 5 30, तो क्लास a हो गया हमारा 6. तो डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट एंड नंबर्स. अंडरस्टैंड? कम ऑन exercise 5.1. Yes class, come on question number 1. Circle 3 numbers which are added to make the number given in the box. क्लास हमें 280 बनाना है, so that is class 280. तो क्लास हम इसको ले सकते हैं 60, 100 और 120. 60, 100, 60 plus 100 plus 120. Yes class C, 60 plus 100 क्लास क्या हो गया 160. तो क्लास अब 160 में क्लास क्या ऐड करेंगे, 160 that is 120. तो 120 प्लस क्या होगा 280. नाउ और हम क्या ले सकते हैं 60 yes 60 प्लस 100 प्लस हो जाएगा 160. अब क्लास अब आप इसको यहाँ पर माइनस करके भी देख सकते हैं, तो क्लास 120 भी ले सकते हैं. 60 100 120, सो 60 80. अब यहाँ पर अब आप 80 भी ले सकते हैं. यस क्लास 60 100 120 तो हमने ले लिया. अब हम ले सकते हैं 60 और 80 और 60 और 80 प्लस 140 प्लस 140 क्या हो जाएगा 280. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. यूज एनी 5 आउट ऑफ गिवन डिजिट कार्ड्स टू फिल इन द बॉक्सेस. क्लास यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 8 है 2 है, सो क्लास 8 और 2 क्या होता है 10. अगेन क्लास 8 और 2 क्या होते हैं 10 plus 1 11, 2 plus 1 3. Rest of the part do yourself. Come on question number 3. Use any 5 out of the given digit cards to fill in the boxes. तो क्लास यहाँ पर क्या है 7 7, so क्लास 5 5 2 2 5 plus 2 7 5 plus 2 7, यहाँ पे 2 का 2. Rest of the part do yourself. Come on question number 4. If x and y are two positive numbers, तो क्लास x plus y 220 और डिफरेंस क्या है x minus y is 20. तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्लास. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y क्या दिया हुआ है हमें 220 और x माइनस y उनका डिफरेंस दिया हुआ है क्लास 20.
तो क्लास डिडक्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू क्लास आ गई 100, अंडरस्टैंड। और y की वैल्यू के लिए हम पुट x इज इक्वल टू 100 प्लस इन इक्वेशन 2। तो क्लास x की जगह हम क्या रखेंगे, 10 माइनस y इज इक्वल टू 20, तो माइनस y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। तो क्लास x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू है 10। ओके, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, इफ p and q क्लास सेम पॉजिटिव नंबर्स, p माइनस q इज इक्वल टू 80 और सम क्लास इन दोनों का 820। सिमिलरली क्लास क्वेश्चन नंबर 5, p माइनस q दिया हुआ है हमें 80 और p प्लस q दिया हुआ है हमें 820। तो क्लास अगेन क्या हो जाएगा चेंज, तो क्लास ये क्या हो जाएगा 2p 820 में से हमें माइनस करना है क्लास 80 को, 740। तो क्लास p की वैल्यू क्लास क्या होगी, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 0। p की वैल्यू आ गई 370। नाउ ये क्लास हमने था इक्वेशन 1 और ये था हमारा इक्वेशन 2। तो क्लास अब p माइनस q इज इक्वल टू 80, अब p की वैल्यू क्या है 370 माइनस q इज इक्वल टू 80। नाउ माइनस q इज इक्वल टू 80 माइनस 370। तो क्लास माइनस q इज इक्वल टू, अब 370 में से हमें माइनस करना है 80 को, 0 9 290। तो क्लास 290 वो भी किसके, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, q की वैल्यू आ गई 290। अंडरस्टैंड क्लास, यस क्लास। अब हमारे पास p की और q की वैल्यू फाइंड कर ली थी हमने। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x एंड y टू पॉजिटिव नंबर, x प्लस y दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है क्लास 20। नाउ x प्लस y दिया हुआ है हमें 220 और x माइनस y दिया हुआ है क्लास 20। यस क्लास, क्लास ये क्या हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 240, x की वैल्यू क्लास क्या हो गई 120। अंडरस्टैंड। नाउ अब x की वैल्यू रखेंगे 120 में, x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, x की वैल्यू है 120 प्लस y इज इक्वल टू 220। तो क्लास y इज इक्वल टू 220 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 0 0 100, y की वैल्यू आ गई क्लास 100, x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 100। ओके क्लास, नाउ क्लास रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू योरसेल्फ। कम ऑन क्लास, कम ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स। क्लास अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके रूल्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10, let us write the first few multiples of 10, 10 20 30 40 50 60 70 and so on. Now let us write some non multiples of class, जिनके पीछे 22 ये non multiples और ये multiples हैं। Thus we conclude if the ones digit of a number is 0, class उसकी one digit 0 है तो वो क्या हो जाएगा multiple of 10 है, अगर नहीं है तो वो multiple नहीं है 10 का। So we get a text of divisibility by 10, hence a number is divisible by 10 when its ones place is 0. So class divisibility by 5, write down first few numbers of 5. Now we see the जो नंबर 5 पे एंड हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है, तो वो नंबर क्या है, मल्टीपल है किसका, 5 का। So the one digit of number is 0 or 5, then it is divisible by 5. Hence a number is divisible by 5 when its one digit is 0 or 5. Divisibility by 2, अब क्लास 2 के लिए जो इवन नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। Now divisibility by 3, so class 3 के मल्टीपल के लिए we do not observe any pattern in the above stated multiples, so consider a 3 digit number. अब क्लास उसको हम क्या कर सकते हैं, clearly 3 multiplied by 33 plus c plus 3b is divisible by 3. So thus for a number to be divisible by 3 should be a factor of 3. Hence a number is divisible by 3 if the sum of its digit, हम उस सम उसकी डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे, अगर वो डिविजिबल है
डिजिट से, तो डिजिट हमारी डिविजिबल है। नाउ डिविजिबिलिटी 9 बाय 9। Look at first few numbers. Class, we do not observe any pattern. Class, हम कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करेंगे. Consider 3-digit number. अब क्लास हम क्या कह सकते हैं? Hence, a number is divisible by 9 if the sum of digit is divisible by 9. अगर उसकी सम है digits, अब क्लास 2 plus 6 plus 3, अब मैं कह दूं 260 is divisible by 9, तो मैं पहले इन दोनों का सम करूंगी. 9 plus 2 plus 11 is not divisible by 9. तो क्लास ऐसे हम उसको सम करेंगे. अगर सम हमसे डिविजिबल हो जाता है 9 से, तो डिजिट क्या होगी? डिविजिबल बाय 9 होगी. नाउ एग्जांपल नंबर 1, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस. अब क्लास क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे. क्या है? प्लस करके 27, तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो इट इज डिविजिबल बाय 9. अब एग्जांपल नंबर 2, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2. अब 2 से करने के लिए क्लास हमारे पास जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए, so that is even. Now example number 3, if 3-digit number is 130x is divisible by 9, what is the value of x? So class, since 130 is divisible by 9, sum of its digit, that is 1 plus 3 plus 0x should be divisible by 9. So class, 4 plus x should be divisible by 9. This is only possible when 4 plus x is equal to 9 or 18. But since x is single digit, therefore x plus 9 is equal to 9, that is x is equal to 5 होगा. Now come on exercise 5.2, question number 1, check the divisibility of the following numbers by 5 and 10. अब क्लास पहले हम 5 का देखते हैं. 5 से वो डिजिट डिविजिबल होते हैं जिसके 1 डिजिट 0 और 5 हो. तो क्लास this and this. और क्लास 10 से वो डिजिट होती है जिसके जो लास्ट में 1 डिजिट सिर्फ 100 हो. तो यस क्लास, ये 10 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है, एंड फर्स्ट क्लास ये 2 ही 10 से डिविजिबल है, बाकी सब 5 से डिविजिबल. ओके, नाउ क्लास कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 3. क्लास अब 3 के लिए डिविजिबल देखने के लिए इन सबका हमें सम करना होगा. 5 plus 4 9 plus 3 12 प्लस ये डिविजिबल है. 7 plus 7 14 plus 9 क्लास 14 plus 9 क्लास 23 plus 1 24, ये भी डिविजिबल है. नाउ 13 plus 1 14, ये डिविजिबल नहीं है. 5 plus 3 8 नहीं है डिविजिबल. 2 नॉट. क्लास 6 9 plus 1 10 नहीं. 6 plus 3 12, yes class 12 is divisible by 3. Now class, rest of the questions do yourself. Your chapter is completed. Prepare it very well and we will meet you in next class. Thank you.